तीन तरह का परमेबिलिटी डिस्कस कर लिया, दैट इज सेमी, सिलेक्टिव एंड परमिएबल। ओके, सो अब वी विल गो टू दैट नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट्स। ओके, अब हमें वो टर्म समझ में आएगा। तो ग्रेडियंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ ग्रेडियंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, so the selective permeability of the plasma membrane allows a living organism, a cell, to maintain different concentrations, okay, to maintain different concentrations of certain substances on either side of the plasma membrane. तो a concentration gradient is a, इसको नीचे ही ले लेते हैं, is a difference in concentration of a chemical from one place to another, such as the inside and outside of the plasma membrane. ठीक है, many ions and molecules are concentrated in either cytosol or ECF. ठीक है, so either cytosol, ओके, साइटोसॉल क्या हो जाएगा? ICF, or extracellular fluid, that is we can say ECF. For instance, oxygen molecules and sodium ions, तो sodium ions को हम कैसे लिखेंगे? Na plus are more concentrated in ECF than in the cytosol. The opposite is true of क्या? CO2 एंड पोटेशियम आयंस। समझ रहे हो? तो और भी हैं, ये एक जनरल इसने एग्जांपल लिया है कि ऑक्सीजन एंड सोडियम बाहर ज्यादा होता है एंड पोटेशियम एंड CO2 अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, सो नाउ अब सत्य सब पैसा गुड़ा नहीं पड़े बोधे कुआड़े, तो वो डाटा पैक नहीं लेना है। चलिए, so now let us go ahead. So the plasma membrane also creates a difference in the distribution of positively and negatively charged ions. इसको ऐसे कर देते हैं, between the two sides of PM. Typically, the inner surface of the PM is more negatively charged and outer side is more positively charged. Okay, a difference in charges between two constitutes a gradient. हो गया? अब gradient हो गया. Now because it occurs across the PM, this charge difference is termed the membrane potential. Okay, so membrane potential. Now the concentration gradient and electrical gradient are important because they help move substances across PM. सुनो, concentration gradient क्या है? वो concentration को चेक करेगा। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या है? वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को चेक करेगा, ठीक है। Now, in many cases, a substance will move across plasma membrane down its concentration gradient. This is to say, a substance will move downhill from its more concentrated to where it is less concentrated to reach equilibrium. Similarly, a positively charged substance will tend to move towards a negatively charged area and vice versa, है कि नहीं? So the combined influence, okay, the combined influence of concentration gradient
and electrical gradient on movement of a particular ion is referred to as electrochemical gradient. मुझे लगा, तो इसको एक और बार हम लोग हाईलाइट करते हुए देख लेते हैं. नाउ तो इसमें हम लोग लिख देंगे O2, ओके, O2 and Na plus ions are more in the ECF than in cytosol. Okay, and the opposite is for this. ठीक है, चलिए उसके बाद an inner surface is more negatively charged and the outer surface is more positively charged. ये क्यों है हम डिस्कस करेंगे. ओके, इसको हम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कहते हैं. ओके ओके, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे तो आप देख लोगे. द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दे हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो ये एक डाउनहिल मूवमेंट होगा. ओके, फ्रॉम हायर टू लोअर. ओके, सो दिस इज द केस. इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं. चलिए, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स. अब हम चले जाएंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक पे. तो समझ रहे हो, तो इसलिए जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट को आपको हर समय देखना है कि बाहर कौन सा ज्यादा है एंड अंदर कौन सा ज्यादा है. ठीक है जी. तो अगर कंसंट्रेशन मतलब माने मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो उसको हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे. 4 स्पीशीज का हम लोग आयनिक ग्रेडियंट बोलेंगे. ठीक है, लाइक अगर प्रोटीन्स लोगे, प्रोटीन्स का कम कंसंट्रेशन होने के बावजूद उसका चार्ज ज्यादा हो सकता है. समझ रहे हो, तो इसलिए ये सब याद रखेंगे. फाइन. नाउ सो नेक्स्ट वी विल गो अहेड. तो नाउ वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट ये जो ग्रेडियंट है, ये क्यों ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, इसको मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूं. फॉर दैट वी शुड गो एंड सी ए फोटोग्राफ. ये वाला. नाउ very important photograph. Please remember this you have to add in your blood. कोई शक? तो ये जो कंसंट्रेशन टेबल है, ये आपको अपने खून में समा देना है, क्योंकि ये आपका इस जिंदगी भर याद रहेगा. ओके, जिंदगी भर न भूलेगी वो बरसात की रात. उस तरह से ये आपको जिंदगी भर याद रखना है. तो आप देखिए, सोडियम कंसंट्रेशन बाहर कितना होता है, 150 मिलीमोलर. अंदर कितना होता है, 10 मिलीमोलर. तो वो वहां ज्यादा होता है. पोटेशियम बाहर 140 मिलीमोलर है. अंदर बाहर कितना है, 5 मिलीमोलर. ओके, उसी तरह से क्लोराइड बाहर 120 मिलीमोलर होता है, जबकि अंदर क्या, वो 10 मिलीमोलर होता है. उसी तरह से कैल्शियम आयंस बाहर 10 to the power -3 मिलीमोलर होता है, पर अंदर -7. एंड ये भी कहाँ होता है, दिस इज इन SER. याद रखना, क्योंकि कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्मोफोबिक होता है. तो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा, तो वो रहता है किधर, ER में, अंदर. फाइन. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो कहाँ ज्यादा है, बोलिए. वो नियरली सिमिलर है, नियरली 2 टाइम्स. ओके, तो कौन सा ज्यादा होगा बोलो, 7.4 ना 7.2, कौन सा ज्यादा होगा. 7.2. यस,
क्योंकि पीएच इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, 7.4 माने वहां OH ज्यादा है, तो इसलिए जो ज्यादा sir. है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। फाइन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं वी कैन राइट एज ए समेशन, हम यहाँ लिख सकते हैं दैट ECF इज ऑलवेज रिच इन क्या, ऑलवेज रिच इन व्हाट, सोडियम, कैल्शियम, और क्या बोलो, And chlorine. कैल्शियम और Chlorine. क्लोराइड। Chlorine. हाँ, तो क्लोराइड आयंस, तो इसमें ECF हर समय रिच होता है। उसी तरह ICF is always rich in the, Potassium or hydrogen yes, concentration. ICF is always rich in K plus, hydrogen ion, and क्या, this is protein ions. ओके, ये एक्चुअली वहां दिया नहीं है, प्रोटीन माइनस आयंस, प्रोटीन भी नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, आयंस, ये सब ऊपर है सुपरस्क्रिप्ट, अब वो मैं कर नहीं सकता, ठीक है जी। सो इसलिए सोडियम बाहर, पोटेशियम बाहर, कैल्शियम बाहर, क्लोराइड बाहर, एंड ये प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, सो तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सो द ICF is more electronegative than the ECF। मैं तुम्हारा कौन सा है, ECF ना ICF? ICF. ICF, क्यों? ECF आपके बाहर है, तो इसलिए अपना औकात देखो, बैंक का देखने का जरूरत नहीं है, you understand? So that is why हमें अपना देखना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ECF, ओके, हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्यों? आप बोले सर पोटेशियम बहुत ज्यादा है हमारा अंदर, ओके, प्रोटॉन देखो इसमें, देखो आप खुद देख लो, पोटेशियम 140 मिलीमोलर है, ऐड कर लो 150 मिलीमोलर, 120 मिलीमोलर, ओके, सपोज ये सोडियम आयन है एंड ये क्लोराइड है, तो 150 प्लस माइनस 120 कितना हो गया, सपोज एक देसी कैलकुलेशन करो, 30 मिलीमोलर प्लस, है कि नहीं? अरे बाबा, हाँ सर. Yes, sir. 150 मिलीमोलर पॉजिटिव चार्ज है, 120 मिलीमोलर नेगेटिव चार्ज है, तो 30 हुआ, फिर 5 35 हुआ, ठीक है, तो सपोज ये 35 मिलीमोलर है, वाट प्रोटॉन सोच लो दोनों सेम है, ओके, ये आपका 35 मिलीमोलर पॉजिटिव है, इधर हिसाब करो 140 पॉजिटिव है कि नहीं, 140 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, ये 150 पॉजिटिव हो गया, एंड ये -10 कर दो तो 140 पॉजिटिव हो गया। कैल्शियम जो है वो कितना गुना है, 10,000 गुना गोल्ला, तो ये 10,000. हाँ, तो ये इतना ज्यादा क्या है, कम है। तो अब सोचो ये 140 गुना था, अब ये 10,000 कम हो गया, तो अब तो देख रहे हो कि नहीं, तो इसका अब ये 10,000 को उधर जोड़ दो तो वो बढ़ गया, फाइन, तो इसलिए ये 10,000 गुना कम हो गया, एंड फिर प्रोटीन भी है। तो ICF में प्रॉब्लम क्या है, लेस पॉजिटिव है एंड मोर More negative. नेगेटिव है, इसीलिए नेट क्या हो गया, सो ICF जो है वो क्या, इसको हम लोग ऊपर ही लिख लेते हैं क्योंकि इसको मैं काट दूंगा, फाइन, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, फाइन। सो जो ICF है वो लेस पॉजिटिव है एंड मोर नेगेटिव है,
सो इफेक्टिवली क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, एनी प्रॉब्लम इन Yes, sir. दिस? क्योंकि ये No, जो sir. डिस्कशन है ये आपका पूरा, अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो ये जिंदगी भर यूज होगा। द ओनली डिफरेंस Very important, sir. इज स्पेसिफिक मेम्ब्रेन में थोड़ा 19-20 हो सकता है कंसंट्रेशन का, पर जनरल सिनारियो यही है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. जनरली यही सिनारियो है। हाँ, किसी में 19 कुछ ज्यादा हो जाएगा, किसी में मैंने 19 कम हो जाएगा, किसी में 20 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि पूरा हेल एंड हेवन डिफरेंस होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अपने मन में संभालो, खून में संभालो, जहां मर्जी संभालो। चलिए, सो इसलिए हाँ बोलो। सर स्क्विड एक्शन कुछ स्पेशल है क्या? क्यों? वो नीचे दिया आयन कंसंट्रेशन फॉर स्क्विड एक्शन इज गिवन। कहाँ दिया है? नहीं सर, ऐसे ही दिख रहा था, सॉरी सर। बस, तो अपने आंखों को कंट्रोल करो। अरे गधों, जब ये डाटा स्क्विड एक्शन पे लिया गया है, वो लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बट मैंने आपको क्या बोला कि ये जनरल रूल है, बट यस, किसी ये एग्जैक्ट फॉर स्क्विड एक्शन है, बट फॉर अदर्स थोड़ा 19-20 हो सकता है, बिकॉज अगेन बायोलॉजी इज ए डैश सब्जेक्ट। बोलो। Dynamic. तो बायोलॉजी एक डायनामिक सब्जेक्ट, तो 19-20 तो होगा। तो ये जो डाटा है ये स्क्विड एक्सॉन में लिया गया था, बिकॉज जिस साइंटिस्ट ने काम किया था वो उसी पे काम किया था। क्यों? टेल मी अगेन, व्हाई उस पे काम किया था? गेस करो, यही तो आपका ब्रेन टेस्ट है। गेस व्हाई इन दैट? व्हाई इन दैट? वो किसी और पे भी तो काम कर सकते थे ना, उसी पे क्यों काम किया? क्योंकि वहां आयोनिक इंटरप्ले ज्यादा है, बिकॉज न्यूरॉन आप जानते हो इलेक्ट्रिकल सेल है, तो उसमें आयोनिक ग्रेडियंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तुम लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? अगर मम्मी डैडी पास में हैं तो उनको बोलिए आपका नमक थोड़ा ऐड ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपका खाना में नमक का कमी लग रहा है मुझे, भेजा काम नहीं कर रहा है। एक जापड़ मार दूंगा अभी ना, तो 2 दिन बाद रहोगे। क्यों 2 दिन बाद रहोगे? Response late Sense आएगा. करने में टाइम करे. क्योंकि तुम्हारा एक्सॉन का सोडियम कम है समझ? इसीलिए अपना मम्मी डैडी को बोलो अचार, सब कोई अचार ज्यादा खाओ। अभी मैं फार्म से लेके जाने वाला हूँ पिकल्स। कौन कौन सा मम्मी ने बनाया मेरे लिए? मशरूम पिकल्स और तीखा चिली पिकल्स एंड आपका जो कटहल पिकल्स, जैकफ्रूट पिकल्स। तो जिसको चाहिए आके ले लेना। जब आप एटीपी देने आओगे घर में तो आके ले लेना। ओके, एक डब्बा लेके आना, बेबी डब्बा। चलिए, so now but the chili pickles is only for the big hearted ones because it is really hot. समझ में आया? चलिए, तो एक्चुअली स्वीट एक्सॉन इसलिए लिया गया है क्योंकि वहां आयनिक इंटरप्ले है, वहां आना जाना देखा जाता है, तो इसलिए वहां ज्यादा मिलता है। भाई देखो, सेल बहुत बड़ा सा चीज है, आप जानते हो, वो दिखता ही नहीं है, और उससे भी छोटा मॉलिक्यूल्स है। तो अगर छोटा सेल लोगे तो कंसंट्रेशन, ये जो माइनस मिलीमोलर लिया है ना, वो उस जो कैल्शियम नहीं लिखा है वैसे हो जाएगा 10⁻⁻⁷। तो हिसाब कैसे करोगे? तो जब आप कम कंसंट्रेशन लेते हो, सपोज प्रियंका बेहरा का 10 रुपए गिर गया है, तो वो थोड़ी गाना गाएगी मेरा लॉन्ग गवाचा। डू यू नो गाना? वो वाला गाना नहीं है, पीछे पीछे आजा मैनू चाल वे आई, काले काले घुंघराले बाल भी हिलाई। ओके, तो वो बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ओके, क्योंकि जो मैं ये बाल हिला हिला के कमर मटका मटका के जा रही थी
तो मैंने अपना लॉन्ग खो दिया है। लॉन्ग डज नॉट मीन योर क्लोव, लॉन्ग मीन्स अपना नाक का जो दाना होता है, जो नाक में पहनते हैं ऑर्नामेंट, उसको लॉन्ग गवाचा। लॉन्ग गवाचा मीन्स मैंने अपना लॉन्ग खो दिया है। निगाह मार द आई वे, मेरा लॉन्ग गवाचा मीन्स जो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तो निगाह मार द आई वे, मेरा लॉन्ग गवाचा मीन्स मेरा वो लॉन्ग नीचे गिर गया है, कहीं मिल जाए तो ढूंढ के ले आना। तो अब 10 रुपए अगर प्रियंका गाएगी तो अपने बालों को हिला हिला के थोड़ी बोलेगी मेरा 10 रुपए गवाचा। बट अगर एक 10 करोड़ 10 लाख लेके आ रही थी वो गवाचा सूटकेस, तो तब गाना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड? तो वी हैव टेकन जायंट एक्सॉन्स बिकॉज दे आर ह्यूज। ओके, जब बड़ा सेल लोगे, बड़ा कंसंट्रेशन मिलेगा, काम करने में थोड़ा सुविधा होगा, है कि नहीं? चलिए, सो दिस इज द ब्यूटी। नाउ आई विल टेल यू अ वेरी odd story in my life. So that was some stories. So now you understand the concept of gradient. Please remember, you have to learn by heart. भले आपको डाटा याद ना हो कितना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने आपको बोला ही है, उसमें वेरिएशन होता है। बट आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा किधर ज्यादा है एंड कौन सा किधर कम है। भले भले। So now the next topic that we will go into is transport across the membrane. I don't want to start it now because we have only 4 minutes. You can